Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I am here Anamfida with our new topic in macroeconomics, that is the public finance. Today I am describing about the public finance. What is the public finance and what is the role of the public finance in macroeconomics or in any branch of the economics? Today we are going to study about the public finance. Public finance is the role of government. Here the word is suggesting that the role of the government. Public finance study about the role of the government, and public finance itself is the role of the government. Is the role of the government in an economy that deals with the government revenue. ये क्या डील्स करती है? गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ अचीवेबल डिजायरेबल इफेक्ट्स. The three words are describing the public finance. The first is the government revenue. The general word is the role of the government, and the first word is describing government revenue and the other is the government expenditures. Government revenue is the, what is the revenue? Revenue is the things that we for example is the finance or money that we get in return. It is the revenue. And expenditures, expenditures is the spendings on the things, goods or services. This is the expenditure. And adjustment of the achievable desirable effects, it is the main thing and it is the main purpose of any government, and it is the main role of the any government. And for fulfilling these achievable and desirable effects, government plays different tools and different policies through their fiscal policy, and by using the other policies, and it will achieve the desirable effects. Which is the that desirable effects? That is the efficient. Three things are very important: efficient allocation of resources. यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट क्या करती है अपना रोल अदा करते हुए? गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं. गवर्नमेंट का रेवेन्यू किस चीज़ के थ्रू आता है? गवर्नमेंट रेवेन्यू कब अर्न करती है? फॉर एग्जांपल थ्रू स्पेंडिंग और थ्रू स्पेंडिंग इन द एनी बिजनेस टर्म्स, इन फॉर एग्जांपल थ्रू टैक्सेस. Through taxes government earn the revenue. And other thing is the expenditure. Government spends on the welfare of society. In social welfare, the government expenditures example is the roads and other infrastructure. And for these two are the not enough for the government role. The main role is for achieving and fulfilling the requirement of the society. यानी कि किसी भी सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करना, उनको पूरा करना गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी होती है, और गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. उसे डिफरेंट वे से करती है. उसमें तीन चीज़ें आती हैं: एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एफिशिएंट क्या होता है? एफिशिएंट का मतलब यानी कि इफेक्टिव. इफेक्टिव इन पॉजिटिव वे, नॉट इन नेगेटिव वे. यानी कि पॉजिटिव वे में जो इफेक्टिव है रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है. फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज इसमें क्या है? आपके पास रिसोर्सेज में लैंड्स आ सकता है, कैपिटल्स आ सकता है, टेक्नोलॉजी आ सकता है. दीज आर द रिसोर्सेज इन द टर्म ऑफ द इकोनॉमी. ओके, इकोनॉमिक्स टेल्स दैट एफिशिएंट एलोकेशन मीन्स कि इफेक्टिव उनको यानी कि एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल लेबर है, लैंड्स है, कैपिटल है या फिर टेक्नोलॉजी है, उसको इस तरह से एलोकेट करना है यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर उन्हें कामों पर इस तरह से लगाना है कि उनका जो रिटर्न है वो हमें पॉजिटिव वे में, इफेक्टिव वे में मिल रहा हो. इसको कहते हैं एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अदर थिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ income to citizens.
फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम को सिटीजन्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल सिटीजन्स या फिर इसमें अदर्स भी आ सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में रहने वाले लोग आ सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल बेस्ट है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के थ्रू जो कार्ड वगैरह बने हुए हैं और लोगों को उसमें वेल्थ के थ्रू हेल्प कर दी जाती है। दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एंड अदर थिंग इज़ द स्टेबिलिटी, इट इज़ द मेन थिंग। स्टेबिलिटी क्या है और इसमें गवर्नमेंट कैसे रोल अदा करती है। स्टेबिलिटी यानी कि इसमें फॉर एग्जांपल प्राइसेस को स्टेबल करना। किसी भी इकोनॉमी में जब प्राइसेस को स्टेबल किया जाता है तो ऐसे इट सेल्फ वो स्टेबल नहीं होती, थोड़ा सा इसमें डिमांड और सप्लाई का रोल होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फॉर एग्जांपल जहाँ पर प्रेस्टीज वैल्यू हो। प्रेस्टीज वैल्यू यानी कि देखा देखी या फिर दूसरे से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिच लोग होते हैं तो डायमंड जितना महंगा होगा वो उतना ज़्यादा इसलिए ख़रीदेंगे, परचेज करते हैं इसलिए करते हैं ताकि वो उनकी वैल्यू ज़्यादा हो सोसाइटी में, वो जहाँ पर बैठेंगे वहाँ पर उनकी अहमियत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस चीज़ को वो मद्देनज़र रखते हुए उसको ज़्यादा लेंगे। या फिर अगर गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड भी लोग ज़्यादा लेते हैं जब वो महंगा होता है, लेकिन जब वो सस्ता होता है अमीर लोग जो होते हैं जो जस्ट उसको शो ऑफ के लिए पहनते हैं, प्रेस्टीज वैल्यू का वहाँ पर चक्कर होता है, देखा देखी में लगे रहते हैं। वो फिर अगर गोल्ड थोड़ा सस्ता हो गया, डायमंड ज़्यादा महंगा है तो वो डायमंड की तरफ मूव कर रहे होते हैं, जी मैंने डायमंड पहना है। फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल इसमें वाइट गोल्ड की है। वाइट गोल्ड जो वो है कॉस्टली देन गोल्डन गोल्ड। गोल्डन गोल्ड से वो जो वाइट गोल्ड है वो ज़्यादा ज़रा कॉस्टली है, तो अब लोग उसकी तरफ मूव कर रहे हैं और शो ऑफ के लिए दिखा रहे हैं जी हमने ये पहना है, ये भी मेरी वाइट गोल्ड की है, फलां चीज़ भी वाइट गोल्ड की है। जबकि सेम उस तरह की एक चीज़ अगर सिल्वर में आ जाती है, चांदी में आ जाती है तो उसको वो पसंद नहीं करते। तो इस तरह का यानी कि वहाँ पर डिमांड और सप्लाई वाली बात पूरी नहीं हो रही। डिमांड का यही रूल है ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं उनकी जो होती है डिमांड होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, लेकिन यहाँ पर वो वाला लॉ अफेक्ट नहीं कर रहा। तो फिर ऐसी पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट अपना रोल अदा करती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो होती है वो नेसेसरी हो जाती है। तो गवर्नमेंट फिर वहाँ पर फॉर एग्जांपल थ्रू फिजिकल पॉलिसी और उसको अप्लाई करते हुए टूल्स ऑफ द फिजिकल पॉलिसी उनको वो यूज़ करती है और मज़ीद उसमें अपना रोल अदा करती है और फिर जाकर वो क्या करती है, मार्केट को स्टेबल करती है, स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, ये था पब्लिक फाइनेंस जिसके बारे में आपको बता रही थी। अच्छा, अब इसमें अगर हम पब्लिक फाइनेंस के सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या है कि जो उसमें डिस्कस किया जा रहा है उस सब्जेक्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें सब्जेक्ट मैटर में इसमें हम क्या क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास आ जाता है पब्लिक के एक्सपेंडिचर आते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। सब्जेक्ट मैटर में फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो आ जाती है पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि पब्लिक स्पेंड किस तरह से कर रही है। एंड अदर थिंग इज द पब्लिक रेवेन्यू एंड अदर थिंग इज़ द पब्लिक, ये बस एज इट इज़ यानी कि पब्लिक को शो ऑफ कर रहा है। इज़ द पब्लिक डेप्ट, ये वर्ड आप डेप्ट यूज़ करते हैं इसको, लेकिन जो यहाँ पर बी होता है यूज टू फॉर एज ए साइलेंट, साइलेंट के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये डेप्ट नहीं बल्कि वर्ड डेट होता है। डेट आपने जहाँ पर भी सुनेंगे डेट की बात हो रही है तो यही डेप्ट होता है, कर्जे वाला, वो कोई एक और अलग चीज़ नहीं होती डेट की। एंड अदर इज़ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेते हैं सब्जेक्ट मैटर में। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीज़ आ जाता है, खजानची वगैरह, ये चीज़ें आप लोग जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ये मतलब वज़ीर ख़जाना और ये सारे जो अपना रोल इसमें अदा कर रहे होते हैं। एंड द फिफ्थ थिंग इज़ द फेडरल फाइनेंस, यानी कि इसमें फेडरल लेवल पर क्या फाइनेंशियल रोल है वो चीज़, फेडरल फाइनेंस। ये 5 चीज़ें हैं जो हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस में आती हैं। ओके, अदर थिंग इज़ द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर बात कर रही हूँ पब्लिक फाइनेंस की
तो आप लोग के जहन में ये बात भी आ रही होगी कि पब्लिक ये सारा काम तो करती है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट तौर पे भी तो ये सब हो रहा होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। पब्लिक फाइनेंस में ये होता है कि इसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इनडायरेक्ट है, सोर्स ऑफ इनकम इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे है? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि गवर्नमेंट ने अगर पब्लिक से, आवाम से अगर बात करते हैं कि उनसे अर्न करना है, रेवेन्यू हासिल करना है, तो वो रेवेन्यू कैसे लेती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी एग्जांपल इसमें बताई थी कि बिस्किट है, टॉफ़ी है, उनके ऊपर टैक्स लगा होता है ना। हमें नहीं पता होता कि हम अगर छोटा सा पत्ती का पैकेट भी परचेज़ करें या फिर छोटे से बिस्किट की भी बात कर लें, एक टॉफ़ी की भी बात करें, उस पर भी हम कुछ पैसे के तौर पर टैक्स को पे कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारा टैक्स होता है हमें पता नहीं होता, हम समझते हैं कि ये 2 रुपये की टॉफ़ी आती है, ये 2 रुपीज़ उस टॉफ़ी के हैं, जबकि उसमें 1 रुपये टॉफ़ी का हो सकता है, 1 प्लस या फिर 1 रुपये जो है वो टैक्स का हो सकता है। तो ये चीज़ जो होती है इनडायरेक्टली गवर्नमेंट हमसे अर्न करती है अपनी इनकम को, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनडायरेक्ट है। ओके, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस में क्या होता है? ऑब्वियसली प्राइवेट फाइनेंस में जब लोग लोगों से ले रहे हैं या दे रहे हैं तो वो क्या है, डायरेक्ट है। सोर्स ऑफ इनकम इज डायरेक्ट। इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि सोर्स ऑफ इनकम प्राइवेट में कैसे डायरेक्ट होता है। ये डिफरेंस है इसमें पब्लिक फाइनेंस में और प्राइवेट फाइनेंस में। प्राइवेट फाइनेंस में सोर्स ऑफ इनकम डायरेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारी अगर किसी से डीलिंग हो रही है, अगर हम परचेजिंग कर रहे हैं, किसी लैंड की बात कर लें, तो वो लैंड का फॉर एग्जांपल 2 लाख पर मरला, अगर 2 लाख का एक मरला हमें वहाँ से मिल रहा है तो वो 2 लाख का 2 लाख ही होगा, डायरेक्ट होगा। वो जो हम इनकम जो है सेलर को परचेज़र दे रहा होगा वो इनकम उतनी ही होगी, एक मरले के पीछे उसको 2 लाख ही मिलेगा। लेकिन जब उसमें मज़ीद टैक्सेस वगैरह की बात होगी तो वो किसका रेवेन्यू है, वो पब्लिक का रेवेन्यू है। तो पब्लिक का जो रेवेन्यू होगा वो इनडायरेक्ट होगा। कि कैसे होगा? फॉर एग्जांपल कि अगर वहाँ पर पटवारी कहता है कि आपने 5 मरले की जगह लेनी है तो उसके इंतकाल के लिए 2 लाख रुपए लगेगा। अब वो जो 2 लाख है उसमें से कुछ पटवारी का कमीशन, कुछ गवर्नमेंट का टैक्स होगा, कुछ इस तरह से, लेकिन हमें उसमें क्लियर नहीं किया जाएगा। वो इनडायरेक्टली वहाँ से टैक्स जो होता है वो पे हो जाता है, जबकि क्लियर हमें होता है लेकिन हमें इनडायरेक्ट वो जा रहा है। आप टर्म पे ज़रा फोकस करेंगे, वो इनडायरेक्ट गवर्नमेंट को जा रहा है। गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल हमने उसको दिया पटवारी को, पटवारी कमीशन वगैरह की पेमेंट उसमें रख के जैसे भी वो फिर गवर्नमेंट को देगा, थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन जो हमने 2 लाख पर मरला की पेमेंट डायरेक्टली करनी है ना सेलर को, वो तो सेलर के पास ही चली गई ना पेमेंट। तो ये प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस दोनों इसमें मिक्स हो रहे हैं, इस चीज़ को अगर देखें तो। अच्छा, अब इसमें गवर्नमेंट जो है अर्न कहाँ से करती है? गवर्नमेंट का इनकम सोर्स इनडायरेक्ट है, रेवेन्यू है, वो कैसे है? तो गवर्नमेंट जो है बोरो करती है हमेशा, बोरो थ्रू टैक्स बर्डन। The word is borrow. Borrow mean that government will make taxes, borrow through tax. When the taxes are taken from the public and public is I am here using the word public for public, that is यानी कि आवाम की बात, लेकिन जो पब्लिक फाइनेंस में है पब्लिक वो हमारी गवर्नमेंट है। अच्छा, इसने अगर ले लिया है थ्रू गवर्नमेंट ने टैक्स कर दिया है और टैक्स ले लिया है, आवाम से ले लिया है, तो ये क्या है? बोरो है। बोरो कैसे है? गवर्नमेंट को अब रिटर्न में स्पेंडिंग भी करनी पड़ती है, गवर्नमेंट उसको किसी तरीके से रखती है और फिर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पेंशन वगैरह के थ्रू उसको एक्सपेंडिचर में भी यूज़ कर देती है। यानी कि बोरो किस लिए करती है? बोरो की ज़रूरत क्यों पेश आती है? टैक्स इज़ द बर्डन फॉर द गवर्नमेंट। हमारे लिए तो टैक्स बर्डन है ही है, गवर्नमेंट का भी ये बोरो है, गवर्नमेंट को फिर वापस देना होता है। अच्छा, किस लिए? अब यहाँ पर एक चीज़ है डेफिसिट। डेफिसिट इज डिस्क्राइबिंग दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेंडिंग मीन्स दैट एक्सपेंडिचर, एंड डिफरेंस है ना माइनस स्पेंडिंग माइनस रेवेन्यू।
ऑब्वियसली अगर हमारा रेवेन्यू यहाँ पर ज़्यादा आ जाता है तो ये स्पेंडिंग अगर कम हो जाती हैं और रेवेन्यू ज़्यादा आ जाता है तो डेफिसिट माइनस हो गया, यानी कि डेफिसिट पॉजिटिव नहीं आया है। डेफिसिट का मतलब है खसारा, खसारा उसमें माइनस हो जाता है, खसारा नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाएंगी, रेवेन्यू कम रह जाएगा तो आंस पॉजिटिव में आएगा, जिसका मतलब होगा कि डेफिसिट है। स्पेंडिंग अगर ज़्यादा हो जाएंगी रेवेन्यू से तो इसका मतलब हुआ कि डेफिसिट है। इसको हम डेफिसिट को टोटल पब्लिक डेट भी कहते हैं। डेफिसिट इज यूज्ड फॉर द टोटल पब्लिक डेट। टोटल पब्लिक डेट है ना ये, फिर उसके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्पेंडिंग ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ने बोरो किया, वो जो गवर्नमेंट ने बोरो किया है वो क्या है, पब्लिक का डेट है, टोटल पब्लिक डेट। अच्छा, ये थ्रू विद इन द इकोनॉमी भी हो सकता है, याद रखिएगा, ये थ्रू अदर इकोनॉमी भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल से गवर्नमेंट कहाँ से ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है ये इंटरनेशनल लेवल पर फंड्स प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट उससे भी बोरो कर सकती है या फिर अपनी इकोनॉमी के अंदर भी। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली पब्लिक फाइनेंस, यानी कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट विद इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर ही। तो फिर वो क्या करेगी, आवाम से जो टैक्स ले रही है वो उसका डेफिसिट को वो पूरा करना चाह रही है कि कितना है, तो टोटल पब्लिक डेट इसको शो कर रहा है। ये क्या करता है, अलाउ करता है टैक्सेस, टैक्स किसके थ्रू, अलाउ टैक्सेस थ्रू फिस्कल पॉलिसी। The main policy used by the government is the fiscal policy। यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी का रोल आता है, कैसे आता है, अब आप लोग बताएं इसमें कैसे आता है। किया था ना, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी एंड अदर इज द एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी में गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंशनरी में क्या करती है, आप लोग ये बेहतर जानते हैं। इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिलीवर्ड दिस टॉपिक, दैट इज द एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी इज द स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, वाइल ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी इज द टैक्सेस टेकन थ्रू अदर पब्लिक्स। ओके, इसमें ये चीज़ आती है। और अब इसमें जो मेन चीज़ है गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो हमें पता चल गया कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, गवर्नमेंट इसमें कैसे रोल अदा करती है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। जो मेन चीज़ है गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल द वर्ड इज सजेस्टिंग दैट डूइंग समथिंग विद द फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस के साथ ही कुछ कर रहे हैं। तो जब गुड का वर्ड आ गया है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मतलब एक बेहतर तरीके से बेटर वे में यूज़ करना। यानी कि अब यहाँ पर बात आएगी, मैंने आपको वर्ड कहा था एफिशिएंट एलोकेशन, इट मीन्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की एफिशिएंट एलोकेशन है इसमें, और ये रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करेंगे एफिशिएंट तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जनरेट रिसोर्सेज, जनरेट रिसोर्सेज या जनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को जनरेट किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, रिसोर्सेज जनरेट करने के बाद क्या होता है, रिसोर्सेज को एफिशिएंट वे में एलोकेट किया जाएगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल इसी तरह से ये एरो फिर आगे मज़ीद चलेगा। पहले रिसोर्सेज को जनरेट किया, फिर उनको एलोकेट किया। एलोकेट किस तरह से हुआ, अगर हुआ गुड वे में यानी कि इफेक्टिव वे में, पॉजिटिव इफेक्टिव में, तब वो हमारा हो गया एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन अगर वो एलोकेशन नेगेटिव वे में चली गई, रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, तो एफिशिएंट नहीं होगी एलोकेशन। फिर यहाँ पर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है गुड नहीं होगी, फिर वो बैड होगी। अच्छा, रिसोर्सेज जनरेट किया, एलोकेट किया एंड उसको एक्सपेंडिचर स्पेंड कर दिया, एक्सपेंडिचर।
अच्छा, ये चीज़ें इसमें आती हैं। और इसमें अब अगर हम बात करें कि एक्सपेंडिचर किसके थ्रू होती है, इसमें हमने ये तो बात कर ली कि टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू को अर्न करती है। और अब यहाँ पर अगर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, पार्क्स, रोड्स के थ्रू, यानी कि रोड बना रही है, पार्क बना रही है, इस तरह से वो एक्सपेंडिचर कर रही है। द बेस्ट एग्जांपल इज़ द गवर्नमेंट पेंशन, पब्लिक पेंशन, यानी कि वो जो आवाम को पेंशन दे रही होती है, पब्लिक पेंशन है, गवर्नमेंट की पेंशन है, आवाम को मिल रही है। यानी कि यंगर से वो जा रही हो, यंगर से टैक्स कलेक्ट हुए। अब यहाँ पे थोड़ा साइकिल को ना इमेजिनेशन में लाएं। यंगर से टैक्स कलेक्ट हुए उनकी सैलरी से, अब वो पेंशन के तौर पे ओल्डर को मिल रहा है, यानी कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं। ये पब्लिक पेंशन का एक तरीका है एक्सपेंडिचर का, जिसमें वो बोरो भी कर रहा है, रेवेन्यू भी ले रहा है, इनकम भी ले रहा है और उसको एक्सपेंडिचर भी कर रहा है। और इसमें बिल्कुल इसी तरह से वेल्थ को वो ट्रांसफ़र कर देता है यंगर से ओल्डर में। फिर एजुकेशन आ जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन आ जाता है एक्सपेंडिचर में, एजुकेशन आ जाएगा। एजुकेशन में क्या होता है कि स्कूल्स में बच्चों के थ्रू जो है वो लोगों के घर में पहुंचा दिया जाता है मनी। फॉर एग्जांपल ये तकरीबन कोई 7 to 8 years अगो, 7-8 साल पहले ऐसा हुआ था कि ना वो स्कॉलरशिप चल रहे थे, एक महीने में ना 6 to 8 था, आई थिंक 6 क्लास 7 और 8 क्लास को मिल रहे थे, 200 पर मंथ दिए जाते थे। उस टाइम बच्चों के लिए ये भी अहमियत रखते थे, यानी कि 3 माह का उनका 600 हो जाता था। इस तरह से कोई पेमेंट थी 200 या 600 पता नहीं, तो इस तरह से लमसम ऐसी ही अमाउंट थी। वो जो अमाउंट थी वो स्कूल के थ्रू, बच्चों के थ्रू घरों तक पहुंचा दी जाती थी। यानी कि ये सेकंड चीज़ जो हमने अभी यहाँ पर सेकंड थिंग डिस्कस की थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टू द सिटीजन्स। सिटीज़न हो सकते हैं, अर्बन है, रूरल है, जो भी हैं। तो यहाँ अर्बन रूरल की बात नहीं, सिटीज़न का वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि वो हैं या वो हैं जो भी शहर में आ गया उसी की बात है। और बिल्कुल ये एजुकेशन के थ्रू चला जाता है। फिर रोड कंस्ट्रक्शन है, और रोड्स के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर को इंक्रीज़ कर रही होती है, एक्सपेंडिचर्स कर रही होती है, इस तरह से। ओके जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कवर हुआ। दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड विद दिस टॉपिक ऑल द कंटेंट्स हैव बीन क्लियर्ड। आपका जो भी सब्जेक्ट का कंटेंट था वो इतने ही टॉपिक्स थे और ये क्लियर हो गए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंटेंट क्लियर हो गया है इसमें बीबीए में, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग ये सारा कवर कर लीजिएगा। आई होप सो तमाम तर टॉपिक्स आपके लिए हेल्प आउट होंगे, आपको समझ आ रहा होगा और ये आपके जो है आगे मज़ीद काम आए आपकी स्टडी में, और इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम के लिए कंटेंट आपका क्लियर हो चुका है। और इंशाल्लाह आप लोग ख्याल रखिएगा अपना।